So hello everyone, I welcome you all in our first video of English literature movements, right? This is the first video of online class, right? So as you all know that because of COVID, every school is closed, right? So we are beginning our this session, that is 21 and 22, right? So today we are starting with English literature. Periodic test 1 chapter is starting from today, that is chapter number 1, and we will start with chapter first in movements, that is the lost child, right? So I just want to give you an overview about this chapter. That this story is about a child, right? Uh, who goes to a fair, a village fair, right, with his mother and father. Then what happens that he get fascinated, attracted towards all the things that he saw or he see over there, right? So what happens, like we all have seen when we go with our parents, no matter what age we are, right? So when we see things around us, we don't stop ourselves from getting attracted towards those things, right? It can be anything like small toys, right? Then shops of sweets and other things, right? So same happened with this particular boy also, right? That he goes to a fair, a village fair, with his father and mother. Then what happens that he uh, after getting attracted, after getting fascinated towards all the things that he saw or see over there, right? So what happens, after some time roaming here and there with his father and mother, the child get lost, right? uh, in that particular fair, right? So uh, the child get lost, then he start uh, searching for his parents, that is for his mother and father, right? So this is an overview I have given, right? Then let us read the story, then we will figure it out what is going to happen with this child, or what exactly happens with this child in the story, right? So I am beginning this story, right, for class 9, for the session 21, 21 and 22, right? So let's start the class. So, Prayag Public School, English Literature Moments, right? Periodic Test 1, Class 9, Lesson 1, The Lost Child, Session 21 and 22. Let's proceed, class. So, this is the first story of the Moments book, from your Moments book, that is The Lost Child, right? Let's proceed. It was the festival of spring. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. Right. So uh, now I will explain what the author is saying. It was the festival of spring. Spring, as you know, that it comes after winter's season, right? So it was a festival of spring. Now in that particular village, there was a fair inaugurated, right? So, or a fair was say getting celebrated in that particular village, and it was in the spring season, right? This festival was getting celebrated in spring season. From the wintry shades. Wintry shade means like as you know, I just told you that spring always comes after winter season. So there was a little a little bit winter, a little bit cold in that particular, or at that particular time, right? So wintry shades of narrow lanes. Narrow means patla, ठीक है? Lanes means passage or path, you can say. And alleys again means path. You can see word meaning I have just written over here. Lanes means track, way, path, etc. Alleys means lane, path, passage, etc. Right? And emerge means to come out, मतलब आना, कहीं से आना या कहीं से निकलना, right? सो नैरो लेन्स मतलब पतली पतली गलियों से, ठीक है. एमर्ज कौन, मतलब कौन आ रहा था? गेली मीन्स हैप्पीली, राइट. क्लैड मीन्स क्लोथ,
क्लोथ पहने हुए, क्लोथेड मतलब अच्छे खासे कपड़े पहने हुए, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं। क्लोथेड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स लोग। तो यहाँ पे ऑथर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फेस्टिवल सीज़न था स्प्रिंग का, ठीक है, तो जो ये मेला लगा हुआ था वहाँ के पतली पतली गलियों से लोग आ रहे थे और अच्छे खासे कपड़े पहन के, राइट। सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ पैदल चल के आ रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे मतलब घोड़ों पे चढ़ के आ रहे थे उस मेले में, ठीक है, और कुछ बैम्बू या बुलक कार्ट्स में, बुलक कार्ट्स आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें बैठकर उस मेले में आ रहे थे लोग। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा बच्चा अपने फादर के पैरों के आसपास दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग ओवर अब यहाँ का क्या मतलब है, टू बी सो फुल ऑफ अ लिक्विड दैट इट फ्लोज ओवर द एड्ज। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसको पूरा भर दीजिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पानी बाहर आने लगेगा, मतलब छलक के, जैसे हम कहते हैं ना छलकता है पानी छलकता है, तो छलक के क्या हो जाएगा, बाहर आने लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पे ऑथर कहने का मतलब है कि जो वो बच्चा था वो अभी छोटा था, ठीक है, और पूरे लाइफ से भरा हुआ था, ठीक है, उसे अभी बहुत आगे बढ़ना था, आगे बहुत कुछ देखना था, और उसके लिए ये जो फेयर था, ये मेला लगा हुआ था, वो एक नया एक्सपीरियंस था उसकी लाइफ में, राइट। सो ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, मतलब वो बहुत पूरे अपनी एकदम अपने लाइफ से पूरा भरा हुआ था। उसकी जो एज थी, जो भी एज में वो था, क्योंकि छोटा बच्चा ही था वो, तो पूरी लाइफ और लाफ्टर से उसकी लाइफ जो थी, उसका जीवन जो था वो भरा हुआ था, ठीक है। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way, right? So अब उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, जैसे अभी मैंने ओवरव्यू देते हुए आपको बताया कि हम चाहे बड़े हों या चाहे बच्चे हों, हम सबकी आदत क्या होती है कि जब भी हम कभी कहीं किसी मेले में जाते हैं या कहीं विज़िट करते हैं, ठीक है, कहीं मार्केट जाते हैं, तो हमारी आदत क्या होती है कि हम चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखने के लिए हम वहाँ पे रुक जाते हैं, राइट। तो इस बच्चे के साथ भी वही हो रहा था कि वो ये उस मेले में जो भी चीज़ें देख रहा था वो वहाँ पे रुक जा रहा था। लैग्ड बिहाइंड मीन्स वॉज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब उसके फादर और मदर तो आगे आगे चलते जा रहे थे, क्योंकि उनके लिए मेले का मतलब कुछ था नहीं, वो तो अपने बच्चे को ही दिखाने के लिए लेके आए थे। पर वो बच्चा जो कि पहली बार ऐसे किसी जगह पे आया हुआ था, मेले जैसे जगह पे, तो वो क्या कर रहा था, वो जहाँ भी कोई चीज़ें देखता था तो वो अट्रैक्ट होके वहीं पे रुक जाता था। फैसिनेटेड बाय मीन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स और टू द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अब यहाँ पे क्या है कि वो किस वजह से वहाँ पे रुक गया है, उसके फादर मदर तो आगे चले गए हैं, इसीलिए वो बुला रहे हैं कम चाइल्ड कम, मतलब आओ बेटा आओ, साथ में हमारे साथ 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 रहो। तो वो खिलौने देख के वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो वहीं पे रुक जाता है, खड़े होके उन खिलौनों की तरफ देखने लगता है जो कि लाइन से लगे हुए थे दुकानों में। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. Right? So he hurried towards his parents. अब जैसे उसके फादर मदर बुला रहे थे कि आओ बेटा हमारे साथ चलो या साथ साथ रहो, तो वो वैसे ही अपने पेरेंट्स का कहना भी साथ साथ मान रहा था, और साथ ही साथ क्या हो रहा था कि वो रुक रुक के दुकानों में जो भी चीज़ें लगी हुई थी वो देख रहा था, और अपने पापा और मम्मी का कहना भी मान रहा था, और आगे आगे उनके साथ चलता चला जा रहा था। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, ओबीडियंट मीन्स ड्यूटीफुल, ठीक है। तो उसका जाने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि हम कभी अगर बच्चों को लेके जाते हैं तो वो छोटे बच्चे होते हैं तो ज़िद करने लगते हैं या खड़े होके कुछ देखने लगते हैं, तो हम जब उन्हें बुलाते हैं तो इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, उनको या तो ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़ता है या तो उनको बार बार बुलाना पड़ता है। तो यही उनके इस बच्चे के माँ बाप भी कर रहे थे। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, अब उसका मन तो नहीं कर रहा था वहाँ से जाने के लिए, वो खड़े होकर सिर्फ
देखना ही चाह रहा था, बट फिर भी उसको जाना पड़ रहा था। और इसमें उसकी मदद कौन कर रहा था? उसके पैर, जो कि उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर उसके पैर उस अपने मम्मी पापा के कॉल को फॉलो कर रहे थे। हिज आई स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब किसी चीज़ को बड़े गौर से देखना, ठीक है। ऑन द रिसीडिंग, रिसीडिंग मीन्स जो पीछे छूट जा रहे थे। तो जो भी टॉयज़, मतलब जो भी खिलौने या खिलौनों की दुकान, जो कि दुकानें लगी हुई थी लाइन से, उन दुकानों पे जो भी खिलौने टंगे हुए थे या लगे हुए थे, उनको वो भले ही अपने पैरों से आगे चल तो रहा था, पर आँखें उन्हीं खिलौनों को देख रही थी जो पीछे छूट जा रहे थे। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस, ठीक है। और किसी तरह वो वहाँ पे अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसके मम्मी पापा उसको रुक कर बुला रहे होते हैं, ठीक है। ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस मीन्स पुट टू एन एंड, मतलब सप्रेस मतलब दबा लेना, किसी चीज़ को दबा के रखना, जैसे अपनी मन की इच्छा। अब यहाँ तो उसका मन क्या कर रहा था? खिलौनों को देखना, उनको ख़रीदना, पर किसी तरह वो अपनी इच्छाओं को क्या कर रहा था? दबा ले रहा था और अपने मम्मी पापा का कहना मान रहा था। और वो कौन सा कहना था? कि आओ हमारे साथ चलते रहो। द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, मतलब जो भी उसका डिज़ायर था, उसका डिज़ायर लाजमी सी बात है क्या होगा? कि खिलौनों को ख़रीदूँ, उनके साथ खेलूँ, ठीक है, और वहाँ जो चीज़ें खाने पीने की थी उनको लेके खाऊँ। तो ये उसकी डिज़ायर थी, पर कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा था? अपनी इच्छाओं को दबा ले रहा था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज़, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अपने माँ बाप से, मतलब फादर और मदर से ये कहता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए या मुझे ये खाना है वो खाना है, तो उसे पहले से ही पता था कि मेरे मम्मी पापा इस बात को बिल्कुल भी मना कर देंगे, कि ना तो वो मुझे कोई खिलौना खेलने के लिए देंगे और ना ही कुछ यहाँ पे बाहर की चीज़ें खाने के लिए दिलाएंगे। तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें अपने मम्मी पापा के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में वो जानता था, राइट। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखी थी, ओबीडियंट मीन्स ड्यूटीफुल एंड रिफ्यूजल मीन्स टू डिनाई, मतलब मना कर देना। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, राइट। सो आखिरकार वो आगे चलते चलते अपने फादर मदर के साथ चलते चलते आखिरकार वो बोल ही देता है, रिक्वेस्ट करता है। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से कि, या फादर और मदर से कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड मीन्स मतलब एकदम उसके फादर की आंखें एकदम लाल हो गई थी, किससे? गुस्से से। वो घूरने, मतलब यहाँ पे उसके फादर ने उसको घूर के देखा, और इसका मतलब ही हो गया कि मैं तुम्हें ये खिलौना नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि शायद अब तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम इन सब खिलौनों से खेलो, ठीक है। तो जैसे वो रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से, उसके फादर एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, मतलब गुस्से के कारण। और इसका ये सिग्नल होता है कि नहीं, यू आर नॉट लाइक you are not good enough to or mature enough to play with those toys, right. In his familiar tyrant's way, a tyrant is a cruel and oppressive ruler। मेरे tyrants familiar tyrants way का मतलब है कि उसके पापा एक हिसाब से फैमिली में हेड थे, ठीक है। तो एक हिसाब से वो रूलर थे वहाँ के, मतलब फैमिली के। तो और उस फैमिली में वही होता था जो उसके फादर कहते थे। तो इस वजह से वो एक रूलर की तरह वहाँ अब ऑथर उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट ही वाज एक्टिंग एज अ रूलर एंड व्हाट काइंड ऑफ अ रूलर मीन्स स्ट्रिक्ट रूलर, दैट ही वाज नॉट he was totally denying the request that the little child was saying or asking, right. Let's proceed further class. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land, right? So his mother melted. अब जैसे कि अब उसके फादर को तो गुस्सा आ गया था, बट उसकी मदर, जो कि हम सब जानते हैं दैट मम्मी लाइक मदर्स आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन और पीपल। सो उसकी मम्मी को बहुत थोड़ी सी दया आ गई उस बच्चे के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। तो उसने उसे बुला लिया। मेल्टेड मीन्स बिकेम टेंडर एंड लविंग।
तो उसने अपने बेटे को बुलाया, राइट। सो हिज मदर मेल्टेड, यहाँ पे मेल्टेड का मतलब है मतलब वो दया दिखा रही थी, प्यार दिखा रही थी अपने बेटे को लेकर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे उसके फादर बहुत एंग्री हो गए थे, राइट। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, राइट। अब यहाँ पे बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर का मतलब है जो फ्री स्पिरिट, यहाँ पे फ्री स्पिरिट का मतलब क्या होता है? सोल। और फ्री कौन था? मतलब वो बच्चा था, ठीक है। तो यहाँ फ्री स्पिरिट का मतलब है उस बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसको नॉलेज नहीं थी कि क्या खरीदना उसके लिए सही होगा, क्या खरीदना उसके लिए सही नहीं होगा, क्या मांगना उसके लिए सही है, क्या उसके लिए मांगना नहीं सही है। तो ये छोटे बच्चा था, उसको नहीं पता था, तो इस वजह से वो अपने फादर या मदर से रिक्वेस्ट कर रहा था। पर उसके फादर जब एंग्री हो जाते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, तो उसकी मदर थोड़ा सा उसको प्यार दिखाते हुए उसको उस एंगरनेस से दूर करती है, मतलब उसके फादर के एंगरनेस से दूर करती है, राइट। सो बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और फिर वो उंगली पकड़ाती है अपने बेटे को और बोलती है, मतलब उसका ध्यान बटाने के लिए या बांटने के लिए क्या करती है, उसको दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट या देखने के लिए कहती है, राइट, या इंटरेस्ट लेने के लिए कहती है। अब वो क्या दिखाती है? अपने बेटे को मस्टर्ड फील्ड दिखाती है, ठीक है। जो मस्टर्ड फील्ड का मतलब है ये मस्टर्ड फील्ड जो कि पूरी तरीके से फैले हुए थे, मतलब पूरा आप नीचे देख सकते हो पिक्चर में, पूरा येलोइश कलर में, ठीक है। मस्टर्ड फील्ड पूरा फैला हुआ था, तो वो दिखाने के लिए या देखने के लिए अपने बेटे को बोलती है, लाइक मेल्टिंग गोल्ड। और किस तरीके से लग रहा था? इट वॉज लुकिंग लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड। वाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और पूरी तरीके से मतलब माइल्स एंड माइल्स ऑफ लैंड में, मतलब दूर दूर तक ये जो आपका मस्टर्ड फील्ड था ये फैला हुआ था, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. Right? So, a group of dragonflies were bustling. ठीक है। अब ग्रुप ऑफ कुछ ड्रैगन फ्लाइज थे जो कि वहाँ पे मतलब उड़ रही थी, ठीक है। बर्सलिंग मीन्स दे वर फ्लाइंग ऑन देयर गॉडी। गॉडी मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, ठीक है। और उनके जो विंग्स थे, जो ड्रैगन फ्लाइज के जो विंग्स थे, आपने देखा ही होगा ड्रैगन फ्लाइज को उड़ते हुए, तो उनके जब सनशाइन उनके विंग्स पे पड़ती है, मतलब सनलाइट उनके विंग्स पे पड़ती है, तो कैसे चमक उठते हैं। तो उसी तरीके से वो ड्रैगन फ्लाइज जो वहाँ पे कुछ ग्रुप में ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे, और उनका जो क्या नाम है, ये विंग्स है वो शाइन कर रहे थे उस सनलाइट या डे लाइट में। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और ये जो ड्रैगन फ्लाइज थे ये किस चीज़ की खोज कर रहे थे? जो फ्लावर्स में स्वीटनेस होती है, मतलब वो जो फ्लावर्स में, मतलब फ्लावर्स का रस लेने के लिए जो स्वीटनेस होती है, ठीक है, उसको खींचने के लिए या उसको लेने के लिए वो वहाँ पे मंडरा रहे थे हवा में। और इसी मंडराने की वजह से ये जो ड्रैगन फ्लाइज थे ये किसको डिस्टर्ब कर रहे थे? वहाँ एक अकेला ब्लैक बी था, ठीक है, काली मक्खी आप कह सकते हो, ठीक है। ब्लैक बी जो बड़ी सी होती है ब्लैक बी, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, और कुछ बटरफ्लाइज भी वहाँ पे उड़ रही थी, उनको भी ये डिस्टर्ब कर रहे थे। कौन कर रहा था? ये ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब वो गौर से वो बच्चा जो है बहुत गौर से इन ड्रैगन फ्लाइज को देख रहा था, और उनको पीछे उनको फॉलो कर रहा था, मतलब उनके पीछे भाग रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल हिट इट्स विंग्स एंड रेस्ट। और जब तक कि, मतलब तब तक भाग रहा था जब तक कि उनमें से कोई एक कहीं आराम से बैठ ना जाए। और फिर जब जैसे बैठ जाता था उनमें से कोई एक, इन सारे ड्रैगन फ्लाइज में से जब भी कोई एक बैठ जाता था, तो ये बच्चा क्या करता था? उनको या उनमें से किसी एक को पकड़ने की कोशिश करता था या कर रहा था, राइट। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर when he had almost caught in his hands,
Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on to the footpath. Right? When it would go fluttering, sorry, but it would go fluttering and flapping. पर जैसे वो बच्चा इन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता, अपने या हाथों में अब जकड़ने की कोशिश करता, तो वो क्या होता, वो अपने विंग्स को फ्लैप करके फ्लट करके या फ्लटरिंग करके, मतलब फड़फड़ा के वो उड़ जा रहे थे. When he had almost caught it in his hands, अब जब लगभग उसने अपने हाथों में एक ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ ही लिया था, तभी उसकी मदर ने एक कॉशनरी कॉल दी. कॉशनरी कॉल मतलब एक यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक कॉशनरी कॉल, एक इम्पॉर्टेंट कॉल दी, ठीक है, ये बताते हुए कि अब हम यहाँ से चल रहे हैं तो तुम्हें भी साथ में चलना चाहिए. ठीक है, लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो तुरंत दौड़ के उस ड्रैगन फ्लाइज को छोड़ के, मतलब भूल करके, वो तुरंत अपने पेरेंट्स के पास दौड़ कर चला जाता है. कैसे? गेली. गेली मीन्स वेरी हैप्पीली. ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम. एंड वॉकड एब्रेस्ट. एब्रेस्ट का मतलब है साइड बाई साइड एंड फेसिंग द सेम वे, मतलब बगल में ही चलना और एकदम उसी मतलब डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसके मदर फादर जा रहे थे, उसी डायरेक्शन में वो साइड में आके अपने मम्मी और फादर के साथ चलने लगता है. और थोड़ी दूर चलने के बाद, ठीक है, वो फिर से पीछे रुक जाता है. सून लेफ्ट बिहाइंड मतलब फिर से वो रुक जाता है. क्यों? अब इस बार क्या हुआ? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया था छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो कि फुटपाथ पे उसे चलते हुए दिखाई दे रहे थे और वो बाहर निकल रहे थे. टीमिंग आउट मतलब वो अपने छोटे छोटे छेद से कह लो, या छोटे छोटे जो उन्होंने घर बनाए थे अपने, ठीक है, तो वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे. क्या एंजॉय करने के लिए? सनशाइन एंजॉय करने के लिए. तो जो भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे छेदों से या छोटे छोटे गड्ढों से, ठीक है, वो निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, ठीक है, सनशाइन एंजॉय करने के लिए, तो ये जो बच्चा था छोटा, वो इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. ठीक है, और फिर आगे चल के, ग्रोव का मतलब देख यहाँ पे क्या है, अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज. तो आगे चल के कुछ ग्रुप ऑफ ट्रीज थे जिनके अंडर में क्या थी, छाया थी, और उसी के आसपास एक कुआं भी था. वेल मतलब कुआं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में बना हुआ है, तो कुआं भी था. और उसी के कुएँ के किनारे, मतलब एड्ज मतलब दीवार पे, उसके उसके मदर और फादर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं. राइट. और फिर वो अपने बच्चे से भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, उसको भी बुला लेते हैं वहाँ पे, और वो ग्रुप ऑफ ट्रीज, जो वहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रीज़ है, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं. और वो बच्चा भी दौड़कर वहाँ पे पहुँच जाता है. लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Right. तो जैसे ही वो उस ग्रोव में एंटर करता है, मतलब वो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ जो थे उनके शेड में, मतलब जैसे उनकी छाँव में वो एंटर करता है, तो कुछ पेटल्स उसके ऊपर गिर जाते हैं. ठीक है, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो कुछ इस ग्रोव के, मतलब वहाँ पे जो भी छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, या जो भी वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, उनके जो भी फ्लावर्स थे, वो जैसे इंटर करता है, ये बच्चा जैसे उस ग्रुप ऑफ ट्रीज़ के अंडर में इंटर करता है, वो ग्रुप ऑफ जो ट्रीज़ के फ्लावर्स से वो इसके ऊपर गिर जाते हैं, मतलब गिरने लगते हैं. जैसे आपने देखा होगा, आप कभी पेड़ के नीचे बैठे हो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप देखे होंगे पत्तियाँ हो गई, क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न है, तो पत्तियाँ हो गई, फूल हो गए, वो अपने आप गिरते रहते हैं. तो वही चीज़ यहाँ भी इस बच्चे के साथ हो रहा था. द ग्रोव, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. और जो भी
उस टाइम पे फिर ये देखो अब किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, उन पेटल्स के टूवर्ड्स, पेटल्स मतलब उन फ्लावर्स जो उस पेड़ से फ्लावर्स गिर रहे थे उनके टूवर्ड्स ये अट्रैक्ट हो जाता है, अपने मम्मी पापा को उस टाइम पे भूल जाता है और ये उन फ्लावर्स को ज़मीन पे जो पड़े हुए थे ये आपके फ्लावर्स जो हो गए उनको इकट्ठा करने लगता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, और तुरंत वहाँ पे वो किसकी आवाज़ फिर सुनता है, डव्स की। तो फ्लावर्स ये मतलब ये उठाता ही रहता है, मतलब वो पड़े हुए फ्लावर्स को उठाता ही रहता है कि तभी उसके कानों में किसकी आवाज़ आती है, डव्स की। तो ये उनके पीछे भागने लगता है, शाउट करने लगता है, डव्स के पीछे शाउट करते करते भागने लगता है, ठीक है। और क्या कहता है, द डव, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को जाके बताता है इस डव के बारे में, और क्या कहते हुए, द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और तभी जब ये डव्स को देखता है, अपने मम्मी पापा को उनके बारे में बताने के लिए दौड़ पड़ता है, ठीक है, द डव कह के, तभी जो भी उसने फ्लावर्स अब तक इकट्ठा कर पाया था या कर पाए थे वो उसके हाथों से छूट जाता है या गिर जाता है। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। Come, child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers, a playful skipping movement round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. Right? सो कम चाइल्ड कम, फिर से जब वहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं उस पेड़ों की छाँव में, तो फिर उसके फादर और मदर जो होते हैं अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो अपने बेटे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, ठीक है। और अब ये क्या करता है, ये बेटा अब ये क्या कर रहा था, ये एक बैनियन ट्री था, ठीक है, उसके राउंड मतलब उसके चारों ओर, वो जैसे हम चारों ओर एक दूसरे को पकड़ मतलब ये वाला गेम खेलते हैं ना, एक दूसरे को पकड़ने वाला, ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा था, उस बैनियन ट्री के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और जो फुटपाथ था, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे को मतलब इस बच्चे को साथ में वो लेते हैं, ठीक है, पहले बुलाते हैं, फिर उसको साथ में लेकर के जो पतली सी फुटपाथ निकल रही थी और किसके बीच से जा रही थी, मस्टर्ड फील्ड से, और कहाँ के लिए, उस फेयर के लिए, फेयर मतलब उस मेले में आगे जाके ये रास्ता मिल जा रहा था, उसी पतले रास्ते से होते हुए मस्टर्ड फील्ड के बीच से जो रास्ता जा रहा था, उसी मस्टर्ड फील्ड के बीच से इस रास्ते से होते हुए वो कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उस फेयर में, मतलब उस मेले में। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So homework, students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy, right? So it is very mandatory for you all to go through the pages or the contents that I have just explained you all. First of all, this thing is very mandatory for everybody. Then what you have to do, you have to make separate copy for movements and beehive, right? So as you know that I have started with movement, right? First chapter is the lost child. So what you have to do is you have to first of all you have to read the pages that I have just explained. Second thing, you have to in your copy, in your classwork copy, you have to mention periodic test 1. Then on the next page you have to write down lesson number, lesson name, you have to put date, and then what you have to do is you have to write down all the hard words, right, including which I have just explained you in this video, as well as that I have written on my own also. You have to write down hard words on one side, and on the other side you have to write down its meaning, right? So you have to write down in your classwork copy the hard words and meanings, and also read the pages covered till now once again. Like I have just told you, you also have to read down the content or pages that I have just explained you in this particular video, right? Also read the chapter a little bit more, and you also have to read the chapter a little further, so that when I will be explaining you the chapter, right, again in the next class, you will be
you will all be able to gain a little bit more about the chapter in a very perfect manner, right? So students, in our next class we will continue this same chapter, right? Till then, take care and stay safe. Thank you, class.